हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विथ राव। आज है 20 जून 2021। सो 20 जून 2021 से जितने भी रिलेटेड अपने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पूरे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे और डिस्कस भी ज़रूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग the following has been appointed as the chairman of the National Institute of Public Finance and Policy NIPFP? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना उर्जित पटेल। Former Reserve Bank of India Governor Urjit Patel has been appointed as the chairman of the National Institute of Public Finance and Policy NIPFP. His 4-year term will begin from June 22, 2020. Second question. iLab Rapid Response Mobile Laboratory is India's first mobile laboratory to provide last mile access for COVID-19 testing. The lab has been launched in association with which Indian state? किस इंडियन स्टेट के साथ वो एसोसिएट करता है? तो वो करता है आंध्र प्रदेश के साथ। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल लेबोरेटरी फॉर कोविड-19 टेस्टिंग इन रूरल एरियाज। जी हम लास्ट क्वेश्चन पे भी वो कर चुके हैं। एंड इन अदर फार फ्लूइंग एंड inaccessible areas of India, the mobile lab called iLab Rapid Response Mobile Laboratory has been built in a record time or 8 days. It has been built by Andhra Pradesh AMTZ, which is Andhra Pradesh MedTech Zone under DBT AMTZ command. So third question पे आ जाते हैं. China was the biggest growth driver of primary energy consumption in the world in 2019. According to the 2020 BP statistical review of world energy, what is the rank of India in the list? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज सेकंड. इंडिया was second biggest growth driver of primary energy consumption in the world according to the 69th annual edition of the BP statistical review of world energy. Okay, so next question पे आते हैं. The International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed every year on. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 19th जून इज द डे. ओके, 19th जून अच्छे से याद कर लीजिए फ्रेंड्स. फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. इंडिया इज सेट टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी इन विच ऑफ दीज मंथ्स? इंडिया इज सेट टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी इन विच ऑफ दीज मंथ्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 2021 में. ओके, अगस्त 2021 में India is set to serve as the president of UNSC. Okay, next question पे आते हैं. The Ministry of Earth Science MOES has come out with the first ever climate change assessment report of India titled Assessment of Climate Change over the Indian Region. As per the report, the average temperature of India increased by around dash during 1901 to 2018. तो कितना होना चाहिए? इंक्रीज कितना हुआ है दोस्तों? टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर इंडिया इंक्रीज बाय हाउ मच? सो इसका आंसर हो जाएगा 0.7 डिग्री सेल्सियस. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये रिपोर्ट करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द स्वदेश मैपिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप मैपिलरी AB हैज बीन एक्वायर्ड बाय विच कंपनी? द स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो हुआ है वो किस कंपनी ने किया है? वो फेसबुक कंपनी ने किया. फेसबुक हैज एक्वायर्ड मैपिलरी AB, अ स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप.
The crowdsources street level imaginary to build immersive and up to date maps. Okay, so next question पे जाते हैं. World Sickle Cell Day is an annual observation which takes place on. कब होता है वर्ल्ड सिकल सेल डे? तो वो वर्ल्ड सिकल सेल डे जो जब मनाया जाता है 19 जून को मनाया जाता है दोस्तों. एवरी ईयर मनाया जाता है ये टू रेज अवेयरनेस अबाउट सिकल सेल डिजीज़. जैसे कोरोना डिजीज़ है ना, वैसे एक सिकल सेल डिजीज़ भी है. उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए 19 जून को वर्ल्ड सिकल डे मनाया जाता है दोस्तों. its treatment methods and to get effective control over the disease worldwide. The day was recognized by the UN, United Nations ने ये डे को रिकग्नाइज किया है दोस्तों. 9th क्वेश्चन पे आते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE has constituted a project development cell PDC to attract investment in developing projects of the sector. Who is the head of this PDC? कौन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है उसके कौन है हेड ऑफ द PDC? तो कौन है दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका अमितेश कुमार सिन्हा है. अमितेश कुमार सिन्हा इज द राइट आंसर हो जाएगा. ये PDC के हेड हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल के हेड हैं. ओके, 10th क्वेश्चन पे आते हैं. KR Sachidhanandan, who is famously known as Sachi, has passed away at the age of 48. He has a re-owned. क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? कौन थे ये क्या थे, मतलब ये थे अपने फिल्म मेकर थे KR Sachidhanandan. ओके, जिनको सची के नाम से भी जाना जाता था. 48 की एज में इनका निधन हो गया दोस्तों. फिल्म मेकर थे ये, याद रखिएगा दोस्तों. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ Metso Oasis Minerals business by Autotech. Metso and Autotech are public limited liability companies incorporated and registered under the laws of which country? किस कंट्री के अंडर ये रजिस्टर्ड है लॉज के अंतर्गत? तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों. क्या होना चाहिए? फिनलैंड. Finland is the right answer. The Competition Commission of India has approved the acquisition of Metso Oasis Minerals business of Autotech, public limited liability companies incorporated and registered under the laws of Finland. Okay, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 12th क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट has been prepared under the aegis of dash with title assessment of climate change over the Indian region. ओके, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन? इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ डैश विथ टाइटल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन. तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज पहला ऑप्शन सही हो जाएगा. इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेम द प्लेस वेयर UN Oil Major British Petroleum is going to set up global business service center to support its global business. नेम द प्लेस. तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र. ओके, पुणे महाराष्ट्र. अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम द प्लेस वेयर UN Oil Major British Petroleum is going to set up global business service center to support its global business. तो क्या आंसर हो जाएंगे? कौन सी सिटीज़ हो जाएंगी? पुणे भी हो जाएगा और महाराष्ट्र भी हो जाएगा. यहाँ पर ये अपना सर्विस सेंटर डालने वाले हैं ग्लोबल बिजनेस को एक्विज करने के लिए. ओके, ऑयल के लिए UN.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये नेक्स्ट ये अपन पिछले जो इसके इसके पहले जो हमने किया था सेशन, इसमें हमने ये क्वेश्चन कवर किया था, याद आया मुझे। इंश्योरेंस पॉलिसी in association with Universal Sampo General Insurance Company Limited to cover the uncertainties posed by COVID-19 pandemic। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी को किया है प्राइवेट सेक्टर बैंक में लॉन्च। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द Municipal Corporation of Greater Mumbai to help residents in the city to know about the availability of the ICU beds and ventilators in both government and private hospitals। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट सेशन में भी हमने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर वेंटी। जो मुंबई में मोबाइल ऐप खोला है वो एयर वेंटी के लिए खोला गया है कि वेंटिलेटर अवेलेबल हैं कि नहीं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से थरली देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ डेली इतनी मेहनत करके कंटेंट ला रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जीके विद राव को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर भी करिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि हम आपके लिए और मोटिवेशन मिले तो और अच्छा कंटेंट लाएं और अच्छी वीडियोस बनाएं। ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। गुड लक, गुड बाय।